السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک انتہائی اہم سرچ انجن کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ جو سرچ انجن ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہے، اور یہ اس وقت ہمیں پتہ چلا جب ہم خود تخصص کر رہے تھے، تو اس وقت چند ہزار فتاوی اس کے اندر موجود تھے، اور ان فتاوی کو ہم اس پہ جا کر کبھی سرچ کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے دارالافتاء پاکستان میں اور ہندوستان کے اندر موجود ہیں، ان تمام دارالافتاؤں کی ویب سائٹس کے اوپر جتنے بھی فتاوی ہیں، اور ایون اگر انہوں نے کوئی عکسی فتاوی یعنی پرنٹڈ فتاوی جن کے اوپر باقاعدہ جو سٹیمپ اور دستخط ہوا ہے مفتی صاحبان کا، تو ان کو بھی انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور وہ دارالافتاؤں سے کی باقاعدہ اجازت کے ساتھ انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور اس کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک سرچ انجن بنا دیا ہے۔ اور شروع میں تو اس کے بہت سلو چلتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ انتہائی تیز ہوا، اور اب اس کے اندر 1 لاکھ بلکہ 1.5 لاکھ کے قریب اس وقت فتاوی موجود ہیں۔ میں نے جب تخصص کیا تھا تو میرے 100 فتاوی ہم نے عوامی فتاوی کو ہی حل کیا تھا، تو میرے بھی 100 فتاوی اس اپلیکیشن کے اندر اور اس سرچ انجن کے اندر موجود ہیں۔ تو جب میں نے ایک دفعہ دیکھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو جامعۃ الرشید کے جتنے فتاوی ان کے پاس تھے، تو ان میں میرے وہ 100 فتاوی بھی موجود تھے۔ تو یہ انتہائی بہترین ہے۔ اب ان کے اندر انہوں نے اے آئی کو انٹیگریٹ کر دیا ہے۔ پہلے تو آپ کو چند کی ورڈز کے ساتھ اپنا مسئلہ تلاش کر کے اس کے مطابق کا جو فتویٰ ہے وہ متعلقہ دارالافتاء سے یا کسی بھی دارالافتاء سے آپ حاصل کر لیتے تھے، لیکن اب انہوں نے اے آئی کو ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے، تو اب آپ پوری سچویشن بھی اس کو دے سکتے ہو پورے جملے کی شکل میں، تو وہ پھر متعلقہ دارالافتاؤں سے سمجھ کر آپ کو آپ کا فتویٰ دے دیتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ سوال کا جواب، اور جواب کے نیچے جو فتویٰ نمبر ہوتا ہے، تاریخ ہے، مفتیان کرام کے نام ہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ جو فتویٰ پرنٹ ہو کر گیا تھا وہی فتویٰ انہوں نے حاصل کیا ہے، اور وہی فتویٰ آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ عوام کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، لیکن عوام کو پھر بھی ویریفائی کروانا ہوتا ہے، تصدیق کوانی ہوتی ہے اپنے قریبی کسی مفتی صاحب سے یا کسی دارالافتاء سے، اور جو ابھی متخصصین ہیں ان کے لیے یہ انتہائی مفید ہے، اور بالخصوص وہ حضرات کے جو علماء کرام ہیں لیکن مفتیان کرام نہیں ہیں، وہ یعنی انہوں نے تخصص نہیں کیا ہوا، تو لوگ ان سے آئے دن مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو پورا ایک مفتی بنا دیتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ آپ اس سے جو بھی مسئلہ پوچھتے ہو تو آپ کو مسئلہ پوچھنا آنا چاہیے، مسئلے کی اصل نوعیت بیان کرنی آنی چاہیے، پھر یہ متعلقہ دارالافتاء سے ایگزیکٹ آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ لا کر آپ کو دے دے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 لاکھ فتاوی جب ایک جگہ پہ جمع ہوں گے تو یقیناً آپ کا فتویٰ، آپ کا جو پوچھا گیا مسئلہ ہے اس جیسی صورت کبھی تو 100% اسی جیسی ہوتی ہے، اور کبھی اس سے 19-20 کے فرق کے ساتھ ہوتی ہے، تو ایک عالم دین پھر اس کو سمجھ جاتا ہے۔ تو علماء کے لیے یہ انتہائی بیسٹ ہے۔ پھر اس کے اندر زکوٰۃ کیلکولیٹر ہے، ایک عوام کے لیے بھی، اور جو علماء کرام امام ہیں، خطباء ہیں، ان کے لیے یہ سب سے بہترین ہے کہ لوگ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو بس زکوٰۃ کی ساری کیلکولیشن ڈالنی ہے، وہ سامنے آپ کے لکھا ہوا آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ سے کوئی عدت وفات کا حساب پوچھتا ہے، کوئی فدیہ، نمازوں کا اور روزوں کا فدیے کا حساب پوچھتا ہے، تو وہ آپ آرام سے یہاں سے نکال کر دے سکتے ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی آپ سے اوزان شرعیہ، مار فاطمی کتنا ہے جی، درہم کی مقدار کیا ہے جی، تو یہ جو اوزان شرعیہ ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو آئیں تھوڑا سا ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ پلے اسٹور کے اوپر موجود ہے، اور باقی جو اس کے فیچرز ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ جتنے فیچرز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے وہی سارے کے سارے آپ کو آپ کی جو اپلیکیشن ہے موبائل کے اوپر وہاں پر بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہاں آ کر آپ یہاں پہ لکھتے ہو دارالافتاء، جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہو darulaftah.info، آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہو، یہ اس کی سب سے پہلے ویب سائٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ویب سائٹ کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ترتیب سے انہوں نے لاکھوں فتاوی کو اکٹھا کر دیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر اے آئی کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اے آئی کی مدد سے آپ اس سرچ انجن کے اندر فتاوی کو تلاش کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس کو آ کر کرتے ہیں، یہ فتاوی ہیں، یہ زکوٰۃ کیلکولیٹر ہے، یہ عدت کیلکولیٹر ہے، یہ فدیہ کیلکولیٹر ہے۔ آپ نے بس اپنی معلومات ڈالنی ہے، جواب آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یہ اوزان شرعیہ ہیں۔
हम सबसे पहले फतावा में जाते हैं, लेकिन फतावा में जाने से पहले दारुल इफ्ता में आपको दिखा देता हूँ कि ये दारुल इफ्ता इनके पास हैं। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद है, दारुल उलूम देवबंद वक़फ़ है, दारुल उलूम कराची है, जामिया उलूम इस्लामिया बिनौरी टाउन है, जामिया फारूकिया अशरफ अल मदारस, जामिया हक़ानिया अकोड़ा खटक, ये दीगर दारुल इफ्ता हैं जी। अब हर एक दारुल इफ्ता के फतावा कितने हैं आप ये देखें। जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया बिनौरी टाउन के 60,877 फतावा मौजूद हैं जी, और दारुल उलूम देवबंद के 34,692 फतावा हैं। जामिअतुल रशीद के 9,766, जामिया उस्मानिया पेशावर के 6,219। अब ये देखें इसी तरतीब से ये नीचे तमाम दारुल इफ्ताओं के जो बड़े बड़े दारुल इफ्ता हैं पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, उनके आपको फतावा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे किसी एक दारुल इफ्ता पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने बिनौरी टाउन के दारुल इफ्ता पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आकर आप देखें तो मौज़ूआती एतबार से आपको फतावा अगर तलाश करने किसी ख़ास मौज़ू में आकर, तो ये देखें नीचे मौज़ूआत हैं, ये मौज़ूआत हैं। इनके अक्सी फतावा यानी जो प्रिंट शुदा कापियाँ थी, उनकी तस्वीर निकाल कर जो फतावा होंगे वो यहाँ पे होंगे। हम देखते हैं कि इनके इसमें हैं या नहीं हैं। तो अक्सी फतावा भी इनके कुछ न कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे हम यहाँ एक फतवे पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें अक्सी फतावा जो बिनौरी टाउन के हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। असल जो उनका पैटर्न है, उसी पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे देखें आपको फतवा नज़र आ रहा है जी। ये देखें, ये सवाल है और ये साथ नीचे उसका जवाब है। तफसीली फतवा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इस फतवे को बड़ी ही देखिए हाथ की लिखाई के साथ ये फतवा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो मुतखस्सिसीन है वो हवाले को देख सकते हैं, वो अंदाज़ को देख सकते हैं। और जो अब ये देखिए ये फतवा छोटा नहीं है, एक बहुत तफसीली फतवा है और किसी ने हाथ से इसको लिखा है। तो अब ये देखें, एक मजलिस में 3 तलाक देने का हुक्म, ये इसके हवाले से है। तो अक्सी फतावा हर एक दारुल इफ्ता जिसके भी इनको मिले हैं वो यहाँ पे इकट्ठे कर दिए गए हैं। ठीक है जी। बाकी आप अपने आप अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक या आप जिस भी बाब के अंदर इसको तलाश करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर इनको तलाश कर सकते हैं। ये देखें, कहते हैं कि इतने लाख अफराद ने इस दारुल इफ्ता से इस्तेफ़ादा किया है और 60,877 फतावा यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम अक्सी के अलावा बात करें तो ये इस तरह से फतवा दिखाई देता है। ये देखें, ये सवाल होता है और ये साथ नीचे जवाब है। जवाब के अंदर जिस तरह से मुफ्ती साहब ने फतवा दिया था उसी के एतबार से बाहवाला वो यहाँ पे लिया गया है और इसमें गलती का भी बहुत कम एहतमाल है क्योंकि वहीं से ही कॉपी पेस्ट किया गया है। अब ये देखें, ये तफसीरी फतवा है। फतवे के आखिर में देखिए दारुल इफ्ता जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया बिनौरी टाउन, फतवा नंबर ये है, तारीख़ 2019 है और ये असल माखज़ ये है जी। कहते हैं कि अगर आपको ये असल माखज़ चाहिए जहाँ से हमने लिया है, यहाँ पे क्लिक करो और आप असल माखज़ के ऊपर पहुँच जाओ। ये उलूम अल इस्लामिया का अपना दारुल इफ्ता का ये सेटअप है और ये उनकी वेबसाइट है। यहाँ से कहते हैं कि देखिए ये फतवा हमने यहाँ से उठाया है। तो आपको साथ जगह तक भी पहुँचाकर छोड़ते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह से हम अगर आते हैं मज़ीद दारुल इफ्ताओं को देखते हैं, तो अगर हम जामिअतुर रशीद का दारुल इफ्ता देखते हैं, तो ये देखें, यहाँ पे कहते हैं कि देखें इतने लाख लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा कर दिया है और ये इनके मौज़ूआत हैं, ये फतावा हैं। अक्सी फतावा भी इसमें मौजूद हैं या नहीं हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं। तो अक्सी फतावा देखें, किसी एक फ़तवे को हम देखते हैं तो आपको जामिअतुर रशीद का पैटर्न समझ आ जाएगा कि जामिअतुर रशीद का जो फ़तवा होता है उसका पैटर्न इस तरह से होता है कि फ़तवा नंबर यूँ लिखा जाता है, यूँ लिखा जाता है, यूँ लिखा जाता है और यूँ करके ये सारी तफ़सील से ये फ़तवा आ जाता है और इस तरह से उनका स्टाइल होता है लिखने का और यूँ करके आखिर में ये मुफ्तियान कराम के दस्तख़त भी मौजूद होते हैं और यहाँ ये इस तरह से फ़तवा रिलीज़ किया जाता है। अच्छा, ये आपने फतावा देख लिए, इस तरीके से आकर आपने दारुल इफ्ताओं से ये फतावा तलाश करके आपने देख लिए। अब पहले ये होता था कि आप अगर यहाँ पे आते हो, तो बगैर एआई के आपको ना यहाँ फ़तवा तलाश करने में मुश्किल पेश आती थी क्योंकि आप किसी भी दारुल इफ्ता से कहते हो कि भाई पूछ बस मुझे चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये फतावा है, तो ये उसी जगह पे मुझे पहुँचा रहा है। आपको किसी भी बस दारुल इफ्ता का बस एक फ़तवा चाहिए, तो आप कहते हो कि भई अ अच्छा, यहाँ पे आपको लिखते वक़्त चूँकि एआई की मदद आप नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे देखें रोज़ा, अब आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, रोज़ा की हालत। अब पूरा जुमला नहीं लिखना, रोज़े की हालत लिख दें और उसके बाद मिसवाक मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ न कुछ समझ चुका है बगैर एआई के भी। फिर मैं एआई की तरफ भी जाता हूँ।
अब ये देखिए रोज़ा की हालत में अगर मिसवाक करने से मसौड़ों से खून आता हो तो क्या दारुल देवबंद का आ गया जी, फतवा नंबर भी आ गया। ये देखिए सारे इससे रिलेटेड जितने भी हैं वो आपके सामने आ गए, ठीक है। 3-4 कीवर्ड्स आप ज़रूर दिया करें। लेकिन अब कमाल ये हुआ है कि एआई को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब देखिए एआई फतवा तलाश है, अब इसमें ना आप इसको पूरी अपनी सिचुएशन बता सकते हो। मसलन रोज़े की हालत में अगर कोई मिसवाक करे तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा? अब यहाँ पे देखिए मैंने पूरा एक लिखा है, तो उसने समझा भी है, समझने के बाद उसी के मुताबिक जितने भी करीब फतवा थे, मिसवाक के इस्तेमाल से अगर दांतों से खून निकला है तो रोज़े का क्या हुक्म है, शाम के वक्त कदम मावा। अब ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, उसमें टूथपेस्ट को भी उसने लाया है, जितने भी इससे रिलेटेड और मिसवाक से रिलेटेड जितने भी वो मसाइल थे उस सबको देखो इसने लेकर आ गया जी। तो अब काम बहुत आसान हो गया, इंतहाई आसान हो गया। मुताबिकत भी देखेंगे कितनी मुताबिकत इसके साथ पाई जाती है। अब ये देखें, तो यूं करके आप अपने फतवे तक पहुंच सकते हैं। अब आते हैं हम इसके दूसरे कुछ फीचर्स को देखते हैं जो इंतहाई ज़बरदस्त हैं, और आप अगर आलिम दीन हैं या ख़तीब हैं, इमाम हैं, आपको ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, अपने मोबाइल से इस्तेमाल करें। ये है ज़कात कैलकुलेटर। ज़कात कैलकुलेटर में जो इन्होंने इसका हिसाब रखा है, या इसके बिलखुसूस यहाँ पे देखें ये हिदायत हैं, हिदायत आप पढ़ेंगे लाजमी, ताकि आपको पता चले कि इसका इस्तेमाल क्या करना है। ये 4 किस्म की हिदायत हैं और इंतहाई ज़बरदस्त हैं। इंग्लिश में अगर किसी ने इस्तेमाल करना तो इंग्लिश में करे, वरना उर्दू में रखे और ये हिदायत पढ़ें। हिदायत पढ़ने के बाद जो इन्होंने सवालात पूछे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मतलब कोई बंदा कहता है कि भाई मैंने ज़कात कैसे देनी है, मेरे पास ये अमवाल हैं, तो आप उसको सामने बिठाकर उसको कहो कि भाई आपके पास जितना भी मौजूद सोना है ना, उसकी कीमत फ़रोख्त बताओ। आप कीमत फ़रोख्त यहाँ पे लिख देते हो सब, लेकिन सबसे पहले आप नीचे आएँ, ये जितने भी सवालात हैं, इससे पहले आप यहाँ नीचे आएँ। नीचे आकर आप 1 तोला चांदी की कीमत तो पूछ लेना, जाकर सुनियार से 1 तोला चांदी की कीमत पूछकर यहाँ पे पहले चांदी की कीमत डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई 1000 रुपये है, ठीक है जी, ये मुझे नहीं पता कि कितनी है, लेकिन वो आप गूगल से जाकर सर्च भी कर सकते हो, लेकिन सुनियार से पूछ लें। अच्छा जी, 1 तोला चांदी की कीमत जो है ना वो 1000 रुपये है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मैं आता हूँ ऊपर, अब इस हिसाब से मुझसे सवालात पूछता है। ये देखें, कहते हैं कि आपके पास जितने भी इस वक्त आपके पास सोना है उसकी कीमत डालो। तो कीमत मैं उसकी मौजूदा कीमत लिख देता हूँ। मसलन मेरे पास ये 2 लाख है, ठीक है जी, और आपके पास अपना जो यानी आपने किसी के पास अमानत रखवाया हुआ सोना है, वो उसकी कीमत लिखो। अच्छा जी, अपने पास मौजूदा चांदी लिखो, उसकी कीमत जितनी भी बनती है। किसी जगह अमानत रखा हुआ चांदी वो लिखो। नकदी के अंदर देखें अपने पास मौजूदा करेंसी, गैर मुल्की करेंसी, मुस्तकबल के किसी भी मकसद के लिए रखी हुई करेंसी, बैंक में जमा शुदा रकम किसी के पास रखी। अब इतने सवालात हैं कि आप खुद यानी एक तरह से मुफ्ती बन जाओगे कि यार किसी से पूछना किस तरह होता है कि ज़कात अगर किसी ने देनी है। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारी जब आप रेटें डालोगे ना, रेट, तो नीचे यहाँ पे आकर तफसील के बाद यहाँ पे आकर आपको कहा जाएगा कि आपकी ज़कात इतनी बन गई। अब मैंने तो 1-2 चीज़ें लिखी ना, तो कहता है आपकी 5000 रुपये ज़कात बन गई, लेकिन अभी सारी डिटेल जब आप लिख कर आओगे ना, तो आपका भी दिमाग थोड़ा सा घूमेगा और जो सवाल पूछने वाला है उसको भी समझ आएगी कि किस तरह से ज़कात निकाली जाती है। ठीक है जी, ये ज़कात कैलकुलेटर। इसी के साथ इन्होंने इद्दत कैलकुलेटर रखा हुआ है कि इद्दत वफ़ात, मसलन शौहर की वफ़ात कब हुई है, तो वो यहाँ पे आएंगे। हाँ जी, इद्दत वफ़ात को हम देखते हैं कि इसको कैसे हमने करना है। यहाँ पे आकर आप मसलन महीना लिख देते हो, मसलन 12वें महीने में, और डेट आप लिखते हो 23, और यूँ लिख देते हो 2025 में वफ़ात हुई है। अब हिसाब फ़ौरी तौर पे उसने बता दिया कि इब्तिदाई इद्दत 23 दिसंबर 2025 है, इख्तिताम 2 मई 2026 को होगी, और साथ चाँद के हवाले से जो भी अहकामात हैं और साथ एक फ़तवा भी अटैच कर दिया, ये जाकर इससे देख लो। है ना कितना ज़बरदस्त? अच्छा जी, फ़िदया कैलकुलेटर। किसी ने पूछा कि मुफ्ती साहब मुझे बताओ कि मेरी इतनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, या मेरे जो मरहूम हैं उनकी इतनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, बताओ क्या करूँ? रमज़ान के रोज़े भी लिख दो, यहाँ पे हर एक फ़ज्र की नमाज़ कितनी थी, दूसरी कितनी थी, तीसरी कितनी थी, 1 किलोग्राम गंदम की जाकर रेट पूछ लो दुकानदार से कितनी है, वो डाल दो यहाँ पे, जवाब आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इतने पैसे आपका फ़िदया बन गया है। और आखिरी औज़ान शरइया है, मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब का जो औज़ान शरिया किताब है, उससे लिया गया है कि आप तौल के एतबार से वज़न मालूम करते हो, नाप के एतबार से या लंबाई के एतबार से। यहाँ पे आप मिक़दार लिखोगे, जवाब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि ये कितनी मिक़दार है। चंद आम और कसीरुल इस्तेमाल औज़ान शरई हैं। 1 तोला सोना आप मसलन यहाँ पे लिखते हो 2 लाख का, ठीक है? और 1 तोला चांदी आप लिखते हो मसलन यहाँ पे 4000 का,
ठीक है। और अब आप नीचे आकर रेट मालूम कर सकते हो कि एक शरी दिरहम कितने का होगा, एक शरी दीनार कितने का होगा, और एक माहर की कम से कम मिकदार कितनी होगी, माहर फातमी कितना होगा। तो ये आपने 1 तोला सोना यहाँ पे आकर गूगल करके देख लेना है, फिर आकर इसको देखना। तो ये जितना भी आपको ये औज़ान शरई हैं, चांदी का निसाब, सोने का निसाब, सदका फितर, सदका फिक्र की मिकदार, कसम का कफारा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, दियत की मिकदार, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में खुद बताएगा, बस सिर्फ आपने यहाँ पे रेट डालनी है। तो ये चंद इसके इंतहाई अहम फीचर्स हैं और इंतहाई अहम है ये। मेरे ख्याल से अगर आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके इस एआई का जो इस्तेमाल है इसको ज़रूर देखें, और इसके जितने भी ये औज़ान शरइय्ये हैं, और जब किसी आलिम दीन के पास अगर ये मौजूद है तो उसको भी ख़ुद फिर किसी मुफ्ती साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद यहाँ पे आकर रिसर्च करे और उसकी वेरिफिकेशन खुद करे। और अगर कोई आवाम इसको देख रही है तो आवाम को चाहिए कि वो मुफ्ती साहब से उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, और अगर मुफ्ती साहब खुद इससे इस्तेफादा कर रहे हैं तो उसके लिए तो कमाल की चीज़ है कि वो खुद ही अगर उसी दारुल इफ्ता से जिससे उसने पढ़ा है तो उसी के फतावा भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर तो और ऑथेंटिक बात हो जाती है। और एक और अहम चीज़ जो इसके अंदर मुझसे रह गई है वो ज़रूर आप देखिएगा, वो है कि इससे आप ना फतवा हासिल भी कर सकते हैं। अगर किसी दारुल इफ्ता से फतवा हासिल करना हो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें इन्होंने इसकी तरतीब भी बताई हुई है। यहाँ पे तारुफ है, इनका तारुफ देख लीजिएगा। सवाल पूछें के अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम दारुल इफ्ताओं के बाकायदा ईमेल एड्रेस और राब्ता नंबर दिए गए हैं। आप मसलन यहाँ पे दारुल यहाँ बनूरी टाउन से आप फतवा पूछते हो तो इस पे क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना सवाल डालोगे। ये देखें, अकाउंट लॉगिन करना है आपने। लॉगिन करने के बाद अपना ये पासवर्ड वगैरह ये आपको प्रॉपर लॉगिन करना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो नहीं छोड़ेगा। उसके बाद आपने अपना सवाल डालना है। सवाल डालने के बाद आप अपना इंतज़ार करोगे, क्योंकि आपको ईमेल के ज़रिए से आपने सवाल किया है, तो थ्रू ईमेल आपका जवाब 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद आपको हासिल हो जाएगा। तो ये भी एक बेहतरीन सा इसके अंदर फ़ीचर मौजूद है। तो daruliftah.info को जाकर अभी-अभी अगर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया तो अभी-अभी जाकर करें, और जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो फ़ीचर्स आपको आज नए लगे हैं ये जाकर यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।